شہر حیدرآباد میں جوبلی ہلز روڈ نمبر 36 پر واقع ایک کپڑے کی دکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ جوبلی ہلز علاقے میں روڈ نمبر 36 پر واقع منگلا گوری شاپنگ مال میں جمعرات کی دوپہر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قریبی فائر اسٹیشن کے فائر ٹینڈرز نے ڈیزاسٹر ریسپانس فورس اور مقامی پولیس کی مدد سے آگ بجھانے کا کام کیا۔ عمارت میں پھنسے 4 افراد کو محفوظ باہر نکالا گیا۔ آتش زدگی کے واقعے کے بعد علاقے میں شدید ٹریفک جام ہوا اور امدادی کارروائیوں کو آسان بنانے کے لیے ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا۔ پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے دائر کردہ عرضی کی سماعت کرتے ہوئے ایکریڈیٹیشن کارڈز کی میعاد 30 اپریل 2026 تک برقرار رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور ایکریڈیٹیشن کارڈ جیو نمبر 252 اور جیو 103 کی ترمیمات کے خلاف عرضی دائر کی تھی اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مذکورہ عدالتی احکامات سے صحافیوں کی پیشہ ورانہ سرگرمیاں اور سہولیات متاثر ہو سکتی ہیں۔ درخواست گزاروں کی نمائندگی معروف خانوندہ ایڈوکیٹ برکت علی خان نے کی۔ سماعت کے دوران اسپیشل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حکومت نے ورکنگ جرنلسٹ کی پیشہ ورانہ مصروفیات میں کسی قسم کی رکاوٹ سے بچنے کے لیے عارضی طور پر ایکریڈیٹیشن کارڈز کی مدت میں 2 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے سرکاری بیان کو ریکارڈ پر لیتے ہوئے واضح کیا کہ موجودہ ایکریڈیٹیشن کارڈز 30 اپریل 2026 تک مؤثر رہیں گے۔ علاوہ ازیں عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ جیو نمبر 252 اور ترمیم شدہ جیو 103 کے خلاف اٹھائے گئے نکات پر تفصیلی جواب داخل کرے۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت آئندہ 4 ہفتوں تک ملتوی کی ہے۔ اس عبوری فیصلے کے بعد تلنگانہ بھر کے ایکریڈیشن کارڈ رکھنے والے صحافی سرکاری پروگرامز اور دیگر سرکاری سہولیات سے بلا تعطل استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس فیصلے کے بعد صحافتی حلقوں کو راحت ملی ہے اور اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ سید غوث محی الدین، جنرل سیکریٹری تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے ایکریڈیٹیشن کارڈ کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے عبوری راحت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو انصاف ملنے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اڈیشہ پولیس نے کوراپت ضلع میں منشیات مخالف کارروائی انجام دیتے ہوئے 200 کروڑ روپے مالیتی گانجا ضبط کیا ہے۔ خطے کی سب سے بڑی منشیات مخالف کارروائیوں میں سے ایک کارروائی میں اڈیشہ پولیس نے کوراپت ضلع میں 225 کروڑ روپے مالیتی چرس کا تیل اور 5 کروڑ روپے مالیتی گانجا ضبط کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اڈیشہ آندھرا پردیش سرحد کے قریب پڈوا پولیس اسٹیشن کے تحت جھولا پیٹ جنگلاتی علاقے میں ایک عارضی مینوفیکچرنگ یونٹ پر چھاپے کے دوران بڑی مقدار میں ممنوعہ اشیاء برآمد ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ 180 لیٹر سے زائد حشیش آئل ضبط کیا گیا ہے۔ ضبط کیے گئے تیل کی مالیت تقریباً 225 کروڑ روپے ہے۔ ڈی آئی جی صدرن رینج کی نگرانی میں ایک خصوصی ٹیم نے یہ کارروائی انجام دی۔ چرس کے تیل کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور مواد کو بھی ضبط کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزمان وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک علیحدہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے رودرارم گاؤں کے لوگوں نے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کارروان ایم ایل اے قاسم محی الدین سے ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا کہ سنگاریڈی ضلع کے رودرارم گاؤں کے لوگوں نے جمعرات کو کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کارروان ایم ایل اے قاسم محی الدین سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں درپیش مسائل سے واقف کروایا اور اپنی شکایات کا بھی اظہار کیا۔ ایم ایل اے قاسم محی الدین نے عوامی مسائل کو بغور سنا اور ان مسائل کی یکسوئی کے لیے اقدامات کرنے کا یقین دلایا۔ تلنگانہ کی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے سیف کڈنی سینٹر کے دورے کے موقع پر کہا کہ گردوں کے امراض میں اضافہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے بروقت تشخیص، جدید علاج اور عوام میں
शऊर बेदार करने की अशद ज़रूरत है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जुमेरात को सैप किडनी सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इदारे की जानिब से गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात को सराहा और कहा कि हुकूमत गुर्दे के मरीजों के इलाज, डायलिसिस और दीगर सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर सेहत को सैप किडनी सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर नियाज अहमद खान ने अस्पताल का तफसीली दौरा करवाया। इस दौरान वज़ीर सेहत ने अस्पताल में नस्ब, जदीद डायलिसिस मशीनों और दीगर तिब्बी सहूलतों का मुशाहिदा किया। वहाँ ज़ेर इलाज मरीजों से बातचीत करते हुए उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। उन्होंने मरीजों को यकीन दिलाया कि हुकूमत सेहत के शोबे को अवलीन तरजीह दे रही है। इस मौके पर डॉक्टर शोएब अहमद खान, डॉक्टर आकिब अहमद खान भी मौजूद थे। दोनों ने वज़ीर सेहत के दौरे पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि सैप किडनी सेंटर जदीद तिब्बी सहूलतों और माहिर डॉक्टरों के जरिए गुर्दों के मरीजों को मियारी इलाज फराहम करने के लिए मुसलसिल कोशा है। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि गुर्दों के अमराज में इजाफा एक संजीदा मसला है और इसके लिए बरवक्त तशख़ीस, जदीद इलाज और अवाम में शऊर बेदार करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने तिब्बी इदारों और हुकूमत के बाहमी ताउन को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा को मल्लापुर में 2 प्राइवेट प्लॉट्स पर लगी बाड़ को फौरी तौर पर हटाने और अराजी के मालिकान को 1 लाख रुपये मुआवजा अदा करने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा को एक बार फिर फटकार लगाई और मल्लापुर में 2 प्राइवेट प्लॉट्स पर लगी बाड़ को फौरी तौर पर हटाते हुए अराजी मालिकान को 1 लाख रुपये मुआवजा अदा करने की हिदायत जारी की। समाअत के दौरान अदालत ने ये मुशाहिदा किया कि रिकॉर्ड की तस्दीक किए बगैर हुकाम अराजी को सरकारी मिल्कियत करार देते हुए हरगिज़ बाड़ नहीं लगा सकते। अदालत ने तस्दीक के अमल पर भी सवाल उठाए। एन पद्मिनी और एक दरख्वास्त गुजार की दायर अलग अलग दरख्वास्तों की समाअत करते हुए जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने बाड़ लगाने के तरीक़ेकार पर सवाल उठाया। अदालत ने तबसरा किया कि अहलकार पहले बाड़ नहीं लगा सकते और फिर अपने अमल को दुरुस्त साबित करने के लिए रिकॉर्ड तलाश नहीं कर सकते। अदालत का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी कदम उठाने से पहले अदालत से इजाज़त हासिल की जानी चाहिए। आपको बता दें कि रंगारेड्डी ज़िले के उप्पल मंडल के मल्लापुर में भाभा नगर हाउसिंग सोसाइटी में सर्वे नंबर 100 में 500 मुरबा गज के 2 प्लॉटों से मुताल्लिक़ ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हाई कोर्ट के एक एडवोकेट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि निचली अदालत ने पहले ही प्लॉट्स को निजी मिल्कियत करार दिया था, ताहम हाइड्रा ने वहां पर बोर्ड लगाते हुए उस अराजी को सरकारी मिल्कियत करार दिया। अदालत ने सवाल किया कि जब निजी मिल्कियत की तस्दीक करने वाले अदालती अहकामात मौजूद थे तो हाइड्रा की जानिब से इस तरह से कार्रवाई कैसे की जा सकती है। हाई कोर्ट ने बाड़ को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया। जब हाइड्रा के वकील ने तामील के लिए वक्त मांगा तो अदालत ने इनकार करते हुए मुतनबा किया कि अगर बाड़ फौरी तौर पर नहीं हटाई गई तो हाइड्रा को दरख्वास्त गुजारों को यौमिया 1 लाख रुपये अदा करने होंगे। वरंगल जिला अदालत को बम की धमकी मौसूल होने के बाद पुलिस ने बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों के हमरा अदालत की तलाशी ली। वरंगल जिला अदालत को बजरिए ईमेल बम की धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद अदालत के अमले ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों के साथ अदालत के हर कमरे और हर कोने की तलाशी ली। बताया जाता है कि कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। एहतियाती तदबीर के तौर पर अदालत के अहाते में बड़ी तादाद में इजाफी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि धमकी आमेज ईमेल किसने और कहां से भेजा था। बम की धमकी मौसूल होने और पुलिस की तलाशी मुहिम के बाद वकला, मुवक्किल और अवाम जो अदालत में मौजूद थे वो अचानक इस पेशरफ्त से खौफजदा हो गए। पुलिस ने तमाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए तेलंगाना की ताज़ा तरीन सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। टीपीसीसी के कारगुजार सदर व साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी ने दिल्ली में एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन सीनियर रहनुमाओं की निशानदही की जो कांग्रेस पार्टी में तवील अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया कि
दो कायदीन वी हनुमंत राव और जेटी केसुमा कुमार दहाइयों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन रहनुमाओं का मुनासिब एहतराम किया जाना चाहिए। जगारेड्डी ने खरगे से कहा कि राज्यसभा की 2 नशिस्तों में से एक वी हनुमंत राव को और दूसरी कुसुमा कुमार को दी जानी चाहिए। उन्होंने हाईकमान के सामने अपनी राय का इजहार किया। आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तियार संभालने के बाद राज्यसभा इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं, जो कि पार्टी के लिए इंतहाई अहम है। अब ये देखना होगा कि पार्टी हाईकमान जगारेड्डी की इस तजवीज़ पर किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। कागज नगर में दारुल अंसार ट्रस्ट की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन किट्स तकसीम किए गए। कागज नगर शहर के माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में दारुल अंसार ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिकीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मुफक्खम अहमद ने बताया कि रमज़ान मुबारक के दौरान शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में घर घर सर्वे के जरिए मुस्तहिकीन की निशानदही की गई, जिसके बाद 120 गरीब बेवाओं, मजदूरों, यौमिया मजदूर और माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को राशन किट्स तकसीम किए गए। ये इक़दाम मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रमज़ान में अशियाए खुर्दनोश की फराहमी के लिए उठाया गया। फ़ीकस 200 रुपये नकद रकम भी फराहम की गई। ट्रस्ट अरकान का कहना था कि ईद और रमज़ान के मौके पर माली मुश्किलात का सामना करने वाले ख़ानदानों को ये इमदाद किसी हद तक राहत पहुँचाएगी। इस मौके पर ट्रस्ट के अरकान हाफिज़ मोहम्मद रियाज, अब्दुल शाकिर के अलावा अब्दुल मुकीम, रहीम मल्नास व दीगर मौजूद थे। सैदाबाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर सत्या नारायणा की क़यादत में अराइव अलाइव के नाम से ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। हैदराबाद में अवाम में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही पैदा करने के लिए अराइव अलाइव के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी क़यादत सैदाबाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर सत्या नारायणा ने की। MNR गार्डन के करीब मुनक़्क़िद इस आगाही प्रोग्राम में एडिशनल DCP रामदास तेजावत ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दरिया असना पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक क़वानीन से आगाह किया। उन्हें मशवरा दिया गया कि वो बाएं जानिब से ओवरटेक करने से गुरेज करें। मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद और उनके पीछे बैठने वाले अफराद को हेलमेट पहनने का मशवरा दिया गया। 4 पहियों वाली गाड़ियां चलाने वाले हर शख्स को सीट बेल्ट पहनने को कहा गया ताकि हादसात से बचा जा सके। पुलिस ने कहा कि महफूज सफ़र उसी सूरत में मुमकिन है जब अवाम ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सीमांचल में कहा कि मरकज़ हिंदुस्तान की सरजमीन से दूरंदाजों को हटाने और मगरबी बंगाल के इंतखाबात से कब्ल सरहदी हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सीमांचल के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने जुमेरात को सीमांचल के अररिया में SSB के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत हिंदुस्तानी सरजमीन से दूरंदाजों को हटाने और मगरबी बंगाल के इंतखाबात से कब्ल सरहदी हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि बिहार असम्बली इंतखाबात में अवाम से वादा किया गया था कि दूरअंदाजों को बाहर निकाला जाएगा और अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला का कहना था कि दूरअंदाजों को निकालने का मतलब सिर्फ फहरिस्त राय दहिंदगान से नाम हटाना नहीं है, बल्कि उन्हें हिंदुस्तान की सरजमीन से भी बाहर करना है और इसके लिए बहुत जल्द एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा और फिर कार्रवाई शुरू की जाएगी। चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे।
और ये पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को। जंगामा जिले के चिलपुर मंडल में एक कार हादसाती तौर पर नहर में जा गिरी। कार का ड्राइवर लापता हो गया। जराये ने बताया कि जंगामा जिले के चिलपुर मंडल में देसाई तांडा के करीब एक स्विफ्ट कार तालाब में डूब गई। बताया जाता है कि कार स्टेशन घनपुर से देसाई तांडा जा रही थी कि हादसाती तौर पर नहर में जा गिरी। वहां मौजूद लोगों ने कार की खिड़कियों के शीशे तोड़कर 18 साला डी चरण को कार से बाहर निकाला और जख्मी चरण को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस वाक़े में कार का ड्राइवर भुकैया पवन लापता बताया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।